Hello, coming back to my channel, The Magnetics Brain, in class 11th, Hornbill, Hornbill book, 7th chapter, The Adventure. Writer Jayant Narlikar. He is Indian person. Let's start. Para first. The Jijamata Express span along the Pune-Bombay route, considerably faster than the Deccan Queen. There were no industrial townships outside Pune. जीजामाता एक्सप्रेस पुणे बॉम्बे मार्ग पर दक्कन क्वीन की अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से चल रही थी। पुणे के बाहर कई औद्योगिक नगर नहीं थे। पुणे के बाहर कोई औद्योगिक नगर नहीं थे। द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला केम इन 40 मिनट्स। द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला केम इन 40 मिनट्स। पहला स्टॉप स्टेशन लोनावाला 40 मिनट में आ गया। The Ghat section that followed was not different from what he knew. इसके पश्चात घाट का हिस्सा आया। ये हिस्सा ऐसा ही था जैसा उसे पता था। The train stopped at Karjat only briefly and went on at even greater speed. गाड़ी थोड़ी देर करजात में रुकी तथा फिर इससे भी अधिक गति से चलती रही। It rolled through कल्याण। ये कल्याण से दहाड़ती हुई निकल गई। Meanwhile, the racing mind of Professor Gaitonde had arrived at a plan of action in Bombay. इसी बीच प्रोफेसर गाइटोंडे के तीव्रगामी मन में बम्बई में काम करने की योजना बना ली थी। Indeed, as a historian means a person who has the knowledge of history. इसका मतलब यह होता है इतिहासकार in Hindi. As a historian, he felt he should have thought of it sooner. वास्तव में इतिहासकार होने के कारण उसने अनुभव किया कि ये विचार पहले आ जाना चाहिए था। He would go to a big library and browse through history books. वह एक बड़े पुस्तकालय जाएगा तथा इतिहास की किताबों को उलट पलट कर देखेगा। History books. That was the surest way of finding out how that present state of affairs was reached. Finding out वर्तमान की स्थिति कैसे आई, यही नया तरीका था। ये जानने का वर्तमान की स्थिति कैसे आई, यही नया तरीका था। He also planned eventually means कि finally पूरा to return to Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande, who he is also important person in this story, who would surely help him understand what had happened. उसने ये भी सोच लिया कि वह अंततः पुणे वापस आकर राजेंद्र देशपांडे से लंबी वार्ता करेगा, जो निश्चित रूप से ये समझने में मदद करेगा कि यह कैसे घटित हुआ था। That is assuming that in this world there existed someone called Rajendra Deshpande. ये समझकर कि राजेंद्र देशपांडे नामक कोई व्यक्ति इस दुनिया में विद्यमान है। The train stopped beyond the long tunnel. It was a small station called Sarad. An Anglo-Indian in uniform went through the train checking permits. ट्रेन लंबी सुरंग के पार रुक गई। ये सरहद नाम का एक छोटा सा स्टेशन था।
एक आंग्ल भारतीय वर्दी पहने हुए ट्रेन में अनुमति पत्रों की जांच करता हुआ घूम गया। This is where the British Raj begins. This is where the British Raj begins. You are going for the first time, I presume, Khan Sahib asked. Khan Sahib asked. ये वह स्थान है जहां से अंग्रेजी राज प्रारंभ होता है। मेरे हिसाब से आप पहली बार जा रहे हैं, खान साहब ने पूछा। Yes, the reply was factually means truly, सही में, तथ्यात्मक रूप से, factually correct. Gangadhar Pant had not been to this Bombay before. He ventured means a dared, साहस किया, a question, he ventured a question, and Khan Sahib, उसने साहस किया क्वेश्चन का, and Khan Sahib, how will you go to Peshawar? Peshawar is in this story is place, पेशावर। हाँ, उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही था। गंगाधर पंत इस बम्बई में पहले कभी नहीं आया था। उसने आकलन लगाते हुए प्रश्न किया, और खान साहिब, आप पेशावर कैसे जाएंगे? This train goes to the Victoria terminus. I will take the frontier mail tonight out of Central. यह ट्रेन विक्टोरिया जाती है। मैं आज रात सेंट्रल से फ्रंटियर मेल पकड़ लूंगा। How far does it go? By what route? वहाँ कहाँ तक जाती है, किस मार्ग से? Bombay to Delhi, then to Lahore and then Peshawar. A long journey. I will reach Peshawar the day after tomorrow. बम्बई से दिल्ली, फिर लाहौर और फिर पेशावर। एक लंबी यात्रा में परसों पेशावर पहुंच जाऊंगा। Thereafter, Khan Sahib spoke a lot about his business, and Gangadhar Pant was a willing means a reluctant means इच्छुक, willing चाहना, इच्छुक मानो, इच्छुक listener. How in that way he was able to get some flavor of life in this India that was so different. तदुपरांत खान साहिब ने अपने काम के बारे में बहुत कुछ बताया, और गंगाधर पंत ध्यानपूर्वक सुनते रहे, क्योंकि For in that way he was able to get some flavor of life in this India that was so different. क्योंकि इस प्रकार वह इस भारत में रहने सहने का अंदाज समझ सका जो इतना अलग था। थर्ड पैराग्राफ। The train now passed. The train now passed through the suburban rail traffic. The blue carriages carried the letter GBMR on the side. The letter GBMR. अब ट्रेन नगर के बाहरी हिस्से से होकर रेल ट्रैफिक से गुजरी। नीले डिब्बे के ऊपर GBMR वर्ण लिखे थे। ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, GBMR. Explained Khan Sahib. See that tiny Union Jack painted on each carriage, a gentle reminder that we are in British territory. The train began to slow down beyond Dadar and stopped only at its destination मतलब गोल, कोई गोल है, हमें वहां तक पहुंच रहे हैं। विक्टोरिया टर्मिनस. The station looked remarkably admirably means कि admirably उल्लेखनीय, इसका मतलब remarkably neat and clean. The staff was mostly made up of Anglo-Indians and
Paris along with a handful of British officers. As he emerged from the station, Gangadhar Pant found himself facing an imposing building. The letters on it proclaimed means कि announced, घोषणा की its identity to those who did not know this Bombay land. अब ये बड़ा हाईलाइट कर रखा है, ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. अब मैं इसकी हिंदी बताता हूँ कि आपको क्या है. ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, खान साहिब ने वर्णन किया. देखो उस छोटे यूनियन जैक को, ये है ग्रेटर बॉम्बे लिखा हुआ है ना फुल फॉर्म, उसकी बता रहा हूँ मैं इसकी हिंदी. यूनियन जैक को जो प्रत्येक डिब्बे में छपा है, वह ध्यान दिलाता है कि हम ब्रिटिश साम्राज्य में हैं. फिर इसका नेक्स्ट लाइन, दादर से पार होने पर रेलगाड़ी धीरे होने लगी और अपने गंतव्य स्थान विक्टोरिया टर्मिनस पर ही रुकी. स्टेशन अत्यधिक साफ स्वच्छ दिख रहा था. कर्मचारी वर्ग में आंग्ल भारतीय और पारसी थे. कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज अधिकारियों समेत स्टेशन से बाहर निकलते ही गंगाधर पंत ने स्वयं को एक प्रभावशाली भवन के सामने पाया. उस पर लिखे अक्षर अपनी पहचान की घोषणा कर रहे थे उन लोगों के लिए जो ये नहीं जानते थे कि बॉम्बे का स्पष्ट मतलब कि पूरी तरह दिखने वाला स्थान है. ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पूरे हाईलाइट है. फोर्थ पैराग्राफ, प्रिपेयर्ड एज ही वाज फॉर मैनी शॉक्स मतलब वियोलेंट इमोशंस, आवेग झटके. Professor Gaitonde had not expected this. The East India Company had been wound up shortly after the event of 1857. At least that is what history books said. Yet here it was not only alive but flourishing. So flourishing means कि nourishing पोषित हो रही. So history had taken a different turn perhaps before 1857. How and when had it happened he had to find out. इसका मतलब यह है कि जैसे वह कई झटके के लिए prepared as he was for many shocks, झटके के लिए तैयार था. फिर भी प्रोफेसर गाइटोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस. फिर भी प्रोफेसर गाइटोंडे ने अपेक्षा नहीं की थी. द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन बाउंड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट ऑफ 1857. ईस्ट इंडिया कंपनी 1847 की घटनाओं के तुरंत बाद सिमट गई थी. एट लीस्ट दैट इज व्हाट हिस्ट्री बुक सेड. 1847 की तुरंत बाद सिमट गई थी और कम से कम इतिहास की किताबों में तो ऐसा लिखित है. So history had taken a different turn perhaps before 1857. फिर भी ये वहाँ नहीं ना केवल जीवित बल्कि पोषित होती. अंततः इतिहास ने एक अलग मोड़ ले लिया. शायद 1847 से पूर्व ये कब और कैसे हुआ होगा, उसे खोज निकालना था. As he walked along Hornby Road, जो ही वह हॉर्नबाई रोड पर जा रहा था, as it was called, he found a different set of shops and office buildings. जिससे ये कहकर बुलाया जाता था, उसे वहाँ अलग तरह की दुकानों दफ्तरों वाली इमारतें मिली. There was no handloom मतलब कि हथकरघा handloom house building. Instead, there were boots and Woolworth departmental stores, imposing offices of Lloyd's, Barclays, and other British banks, as in a typical high street of a town in England. हैंडलूम हथकरघा सदन भी नहीं था, वहाँ पे कुछ भी हथकरघा भी नहीं था. There was no handloom house building. वहाँ घर नहीं था हथकरघे का भी. और इसकी बजाय वहाँ बूट्स व वुलवर्थ के डिपार्टमेंटल स्टोर थे. लॉयड के अन्य दफ्तर, मदिरालय तथा अन्य ब्रिटिश बैंकों के प्रभावशाली भवन थे जो इंग्लैंड के किसी विशिष्ट नगर की सड़क की भांति दिखाई देते थे. चलो एंड करते हैं यहीं पर.
बाकी नेक्स्ट पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. Thank you and subscribe my channel and like my videos. Thanks a lot for watching.